Distillation process. The separation of two components from the mixture into their pure component. The distillation is based on what? Difference in boiling point. दोनों लिक्विड में दो जो मिक्सचर रहेगा हमारा कंपोनेंट्स का, दो अलग कंपोनेंट्स मिक्स करेंगे लिक्विड, तो दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर सेम होगा तो वी कैन नॉट सेपरेट इट, राइट? ओनली टू लिक्विड्स वी कैन सेपरेट इफ their boiling point is different. There is a difference in boiling point, then distillation process can be proceed. Correct? There are three types of distillation that we have seen here. There are three types of distillation: type 1, type 2, type 3. Correct? Before that, do you know what is the boiling point? What is the boiling point? Yes, right. The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric vapor pressure. That is known as boiling point. So, let's see. There are three types of distillation: type 1, type 2, type 3. And of course, in last lecture we know that the type 1 distillation is nothing but a distillation of ideal solution, ideal mixture. If the two liquids are following the Raoult's law, then such a mixture is called as the ideal solution, and there is a linear variation in boiling point with different composition. Right? है ना, हमने कहा कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस उसमें क्या होता है, अलग अलग कंपोजिशन रहेंगे, परसेंट कंपोजिशन 20% सोल्यूशन है, 30% है, 50% है, 80% है, तो हर एक कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा क्या? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. डिफरेंट कंपोजिशन हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. करेक्ट. एंड देयरफॉर if the ideal mixture is there, then the boiling point changes linearly. Linear मतलब step by step. First step, second step, third step, ऐसे. Linear increase. That we will see here. Example, you know, methanol plus ethanol, benzene plus toluene. Any more? Plus N-hexane. N-hexane plus N-heptane. Right. N-hexane plus N-heptane. The variation in boiling point will be not linear. Linear नहीं होगा. जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट टेल मी ज्यादा होगा या कम होगा? Of course will be less than means you can say low as usual boiling point से इन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा. लो को हम कहते हैं मिनिमम. सो दिस solution showing the minimum boiling point mixture. So this mixture, the solution of mixtures of solution showing positive deviation shows the minimum boiling point. Correct? या फिर low boiling point as ideal condition के कंपेयर में कम boiling point रहेगा इनका. Correct? Examples. Come on. एक H2O plus alcohol. Very good. Acetone plus alcohol. Acetone plus carbon dioxide बताइए हो गया. Correct? बाकी के एग्जांपल सर मेरे को प्रीवियस लेक्चर में कर लिए. नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 3. Solution showing the negative deviation. The composition of this mixture will show the boiling point maximum. As compared to their ideal solution.
तो आइडियल सॉल्यूशन कंपैरिजन में उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम हाई होगा, मोर। Okay, distillation of solution showing ideal conditions. So consider this to A component which is 100% of pure at this position, and B which is the component B whose composition is 100% here. The curve is like this. C point and D point, if we consider the point C is known as what? Point C को हम क्या कहेंगे? Boiling point of pure liquid. Very good. Boiling point of pure liquid. Liquid कौन सा? A, है ना? So point C is known as the boiling point of pure component A. Point D is called as the boiling point of pure component B. This liquid curve indicate what? This liquid curve indicate the boiling point of different composition of A and B. Liquid. तो liquid mixture का boiling point curve है ये liquid curve. And what is about vapor? The vapor curve is the vapor composition curve of mixture A and B. A and B mixture का जो वेपर्स निकलेंगे ना, उस वेपर में कितना परसेंटेज रहेगा? A and B कंपोनेंट, उसको हम कहेंगे वेपर कंपोजिशन कर्व, इस वेपर कर्व, करेक्ट? So I think you understand this is the curve which indicate when liquid is going to boil. यहाँ पे लिक्विड क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, एंड उसके जो वेपर्स कलेक्ट होंगे उसको हम कंडेंस करेंगे. ओके, तो कंडेंस करने के बाद उसका जो कंपोजिशन रहेगा दैट इज वेपर कंपोजिशन. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, नाउ कंसीडर द कंपोजिशन X. अब एक X कंपोजिशन कंसीडर किया यहाँ. इट इज गोइंग टू बॉईल एट टेम्परेचर T. करेक्ट? टेम्परेचर T पे बॉईल करेगा वो, राइट? देन व्हाट हैपन? अगर वो T पे बॉईल हो रहा है, देन यू नो मिक्सचर लिया हमने, A और B का मिक्सचर लिया है, जिसमें A का बॉइलिंग पॉइंट C है, B का बॉइलिंग पॉइंट D है, करेक्ट? टेल मी whose boiling point is more, A or B? A. Of course, definitely the boiling point of liquid A is higher than B. Correct? So tell me which liquid will boil first, A or B? B. Of course B, जिसका boiling point कम हो पहले boil होगा. Definitely. तो पहले लिक्विड B, जब हम मिक्सचर है दोनों का कंपोजिशन लेंगे, X कंपोजिशन सपोज वो 60% लिया हमने बेबी का है, तो इसको मैंने बॉइलिंग स्टार्ट किया, तो जिसका बॉइलिंग कम है वो पहले बॉइल शुरू होना है. तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जब बॉइल शुरू होगा लिक्विड मिक्सचर, तो टेम्परेचर T पे ना वेपर्स क्रिएट होंगे, करेक्ट? वेपर जनरेट होंगे, तो उन वेपर्स को मैं क्या करूँगा, डिस्टिलेशन का मतलब वही है ना, हीटिंग, फॉर्मेशन ऑफ वेपर एंड कंडेंसेशन टू फॉर्म द लिक्विड, है ना? लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, वेपर्स फॉर्म करेंगे, वेपर्स को कंडेंस करेंगे, फिर से लिक्विड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन. तो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, दिस प्रोसेस आर साइमल्टेनियसली हैपन इन डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन में ये प्रोसेस चालू ही रहेगी. हीटिंग जैसे अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको लगे तो इन लैब डिस्टिलेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे जो वेपर्स क्रिएट होगी
उस वेपर्स को मैं कलेक्ट करूंगा एंड आई विल कूल इट, कंडेंस इट इन द लिक्विड फॉर्म व्हिच इज रिचर इन ए और बी। उसमें ज्यादा कौन रहेगा, ए रहेगा या बी रहेगा? मैंने मिक्सचर बॉईल करना शुरू किया है, ये उसको बॉईल करना शुरू, वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, कंडेंस कर रहा हूँ, कंडेंस करके लिक्विड बनेगा। तो जो लिक्विड बनेगा उसमें ए ज्यादा रहेगा या बी ज्यादा रहेगा? You are very clever boys and girls, really. See, सही में जब हम इसके वेपर्स का, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया ना, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी बॉईल होगा, तो जो जल्दी बॉईल होगा उसके वेपर जल्दी बनेंगे, और जो वेपर जल्दी बनेंगे उसको कलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी हियर, तो देखो कितना ब्यूटी है डायग्राम। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा ना इधर, ओके, एक्सटेंड करके यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा और यहाँ पे मिलेगा मुझे x2, करेक्ट? So this x2 is a vapor composition, करेक्ट? x2 क्या होगा यहाँ पे? वेपर कंपोजिशन रहेगा एट बॉइलिंग T, एट बॉइलिंग पॉइंट T, बॉइलिंग पॉइंट T पे तो कंपोजिशन होगा x2 होगा। एंड आपने देखा यहाँ पे x1 कर दो, सॉरी, तो आपने देखा x यहाँ से लिक्विड फॉर्म में, x यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, मतलब A से B की ओर शिफ्ट हुआ, मतलब B क्या है, रिच है ना यहाँ पे, हम इधर से इधर जाएंगे तो x1 is a vapor composition collected at boiling point T which is richer in component B, component B। तो हमने T बॉइलिंग पॉइंट पे जो मिक्सचर कलेक्ट किया x का, उसका जो कंपोजिशन बनेगा वो x1 बनेगा, और वो रिच में किसका रिच रहेगा? B का रिच रहेगा। एंड टेल मी हो गया। एंड इफ तो क्या हुआ फिर, इस ए निकल गया, बी निकल गया थोड़ा सा, फिर जो लिक्विड मिक्सचर बचेगा, रेसिडुअल लिक्विड जो बॉइल हो रहा है, रेसिडुअल लिक्विड, तो उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, वो लिक्विड होगा यहाँ पे, वो जो लिक्विड आएगा यहाँ पे आएगा, और उसका कंपोजिशन क्या रहेगा? क्या रहेगा? x2 रहेगा। जब लिक्विड को मैं बॉईल करूंगा टेम्परेचर T पे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अलग अलग कंपोजिशन रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेंगे, करेक्ट? और जब मैंने कुछ 60% कंपोजिशन लिया था, 60 में से कुछ 5% या 10% 10 ml निकल गया, 60 ml मैंने मिक्सचर लिया, उसमें से 5 ml मिक्सचर B का निकल गया, फिर कितना बचा? 55 बचा, 55 बचा ना, 55 जो रिच किसमें है? ए में रिच है, तो रिमेनिंग मिक्सचर रहेगा रेसिड्यू, जिसमें से D निकल गया थोड़ा बहुत, तो अलग कंपोजिशन बनेगा। तो जो बना वो कौन बना? x2 बना। एंड x2 तो जो रेसिडुअल मिक्सचर रहेगा तो उसको हम फिर से बॉईल करेंगे, करेक्ट? रेसिडुअल मिक्सचर को हम फिर से बॉईल करेंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट रेसिडुअल मिक्सचर विल बी मोर देन प्रीवियस बॉइलिंग पॉइंट। तो उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा पहले मिक्सचर से, मतलब x1 x कंपोजिशन जो था, फिर बाद में x2 मिला हमें, x2 को मैं फिर से बॉईल करूंगा तो टेम्परेचर T पे बॉईल हो रहा है क्या? It is going to boil here and so that is the temperature T1. So boiling point of that mixture is going to change. जो नया कंपोजिशन हमें मिला है यहाँ पे x2, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बाद में? उसको हम फिर से बॉईल करेंगे, फिर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा एंड इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट T1, करेक्ट? T1 मिक्सचर में उसको बॉईल कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू कलेक्ट अ वेपर, फिर से मैं वेपर कलेक्ट कर रहा हूँ टेम्परेचर T2 पे, टेम्परेचर T1 पे, सॉरी टेम्परेचर T1 बॉइलिंग पॉइंट है, x2 कंपोजिशन का वेपर्स कलेक्ट करूंगा मैं, वेपर्स को कंडेंस करूंगा फिर से,
तो जो कंडेंस हुआ लिक्विड है उसमें कौन ज्यादा रहेगा, ए या बी? कौन ज्यादा रहेगा, ए या बी? देखो मैंने x2 को बॉईल करना शुरू किया है, T1 पे बॉईल हो रहा है, तो कौन ज्यादा रहेगा, ए और बी? डोंट कंफ्यूज माय डियर साइंटिस्ट। दोनों बी वाले हाथ ऊपर करो, चलो देखते हैं। जिनको लगता है कि बी कंपोजिशन ज्यादा होगा, हाथ डरो मत यार, यूज योर कॉमन सेंस यूज करना है। मैंने क्या कहा, x2 कंपोजिशन है, सपोज 80% है, सपोज कितना है 80%, 60% अब कम हुआ ना, अभी मतलब ये 80 हुआ, ये क्या था 80% हुआ, इसको बॉईल कर रहा हूँ टेम्परेचर T1 पे, करेक्ट? वेपर्स करेक्ट होंगे, वेपर्स को मैं कंडेंस करूंगा, कूल करूंगा, कूल करने के बाद लिक्विड मिलेगा मुझे, तो लिक्विड में ए का अमाउंट ज्यादा रहेगा या बी का अमाउंट ज्यादा रहेगा, यूज करना है। मैंने क्या कहा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो पहले बॉईल होगा। x2 का पोजीशन है, वो प्योर है क्या? नहीं। x2 प्योर है क्या? प्योर मतलब ये रहेगा 100%, प्योर है क्या? नहीं है, उसमें कुछ अमाउंट में भी है। मैंने बॉइल करना शुरू किया, सिर्फ इतना हुआ, हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, कंपोजिशन इंक्रीज हुआ, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया हमारा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट T था पहले, बाद में बॉइलिंग पॉइंट T1 हो गया। जिस अभी टेम्परेचर T है, बट वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है क्या? नहीं है, T1 है, तो इसमें फिर से लिक्विड मिक्सचर बॉइल होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वही पहले बॉइल करेगा, है ना? ऐसा थोड़ी होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो रह जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो पहले निकल जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही बॉइल होगा, टेम्परेचर T1 पे भी। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? वेरी गुड, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है एंड बी यहाँ पे बॉइल होगा, और जो वेपर्स मैं कलेक्ट करूंगा उसको फिर से कलेक्ट करने के बाद मुझे क्या होगा, फिर से मैं बॉइलिंग लिक्विड कलेक्ट करूंगा, तो मुझे जो बचा हुआ लिक्विड मिलेगा, थोड़ा सा लिक्विड, उस लिक्विड में बी ज्यादा अमाउंट में देगा, करेक्ट? तो फिर अगर बी उसमें से निकल जाएगा तब, तो फिर कौन बचेगा? प्योर कंपोनेंट ए, एंड इफ आई एम गोइंग टू बॉइल दैट लिक्विड, इट विल बॉइल एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट जो यहाँ पे बॉइल होगा वो सी पे बॉइल होगा एंड विल गेट द 100% कंपोनेंट ए। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सेपरेट ए एंड बी, ऐसे हम ए और बी को सेपरेट करेंगे, करेक्ट? नाउ लेट्स सी हियर अनदर वन कंडीशन लेंगे, हम x3 की कंडीशन लेते हैं। x3 पे मैंने ना क्या किया, x3 को मैंने बॉइल करना शुरू किया। x3 का पोजीशन प्योर है क्या? x3 प्योर है ना, उसमें a भी है और b भी है x3 में, तो मैंने बॉइल करना शुरू किया है यहाँ पे, एंड when I am going to boil, it will boil at temperature T2, correct? temperature T2 पे boil होगा, and when I will collect the vapor, I will collect the vapor of this liquid X3 at boiling point T2, then tell me which liquid A or B will be get. तो मैं टेम्परेचर T2 पे मैं मिक्सचर बॉइल कर रहा हूँ x3, तो मुझे A मिलेगा या B मिलेगा? मिक्सचर एब्सोल्युटली B मिलेगा, फिर क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वही बॉइल होगा, ये दिमाग में फिक्स कर दो, डोंट कंफ्यूज। तो x3 को मैं फिर से बॉइल करना शुरू किया, तो मुझे मिला यहाँ पे x4, देखो x4 मिला है, और x4 कितना क्लोज किया है ना b के। x3 को मैंने बॉइल करना शुरू किया है, तो उसके वेपर्स कलेक्ट होंगे, वेपर्स कलेक्ट करने के बाद उसको मैं कंडेंस करूंगा, उसका जो लिक्विड बनेगा और लिक्विड का कंपोजिशन x4 रहेगा, और x4 इज रिचर इन b, उसमें रिच कौन रहेगा? b रहेगा, और x4 को मैं फिर से बॉइल करूंगा, तो डेफिनेटली आई विल गेट ओनली प्योर कंपोनेंट b।
इसको किसी बॉइल करूंगा तो मुझे सिर्फ बी कंपोनेंट ही मिलेगा। एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन कर्व फॉर टाइप 1 मिक्सचर्स या फिर एक्सप्लेन डिस्टिलेशन कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। दूसरा कंडीशन आएगा फिर एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन कर्व ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूल सॉल्यूशन, ऐसा भी आ सकता है। एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन कर्व फॉर मिथेनॉल प्लस इथेनॉल सॉल्यूशन।